Hello children, so we are going to do EVS class 4th, chapter number 2, just can't live without food. We have already done this thing, so we'll start with the next page. Okay, till here we have already finished. Now we'll start with this chapter, this page. Okay, so can you see here a chart is there? Now this chart is showing you balanced diet. Can you see? Okay, this is balanced diet. Now what is balanced diet? So the food which gives us all the nutrients is called balanced diet. ऐसा खाना जो हमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक इट गिव्स अस मिनरल्स, विटामिन्स, carbohydrates, fats, etc. Okay, now here some food items are given which gives you a balanced diet. So we'll see this. Spices, just see here, wait a minute. Okay, now see here, spices, लीफी वेजिटेबल्स. स्पाइसेस मतलब आपके घर में जो भी मसाले वगैरह हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइसेस. लीफी वेजिटेबल्स मीन्स आप जो भी हरी सब्जियां खाते हो, दैट इज़ कॉल्ड लीफी वेजिटेबल्स. देन सीरियल्स, यानी कि गेहूँ, चावल, ये सब आपके सीरियल्स हो गए. नेक्स्ट इज़ पल्सेस, दैट मीन्स दालें. ऑयल, घी, आप जो तेल सब्ज़ी में यूज़ करते हो, पराठे बनाते हो, आप घी खाते हो, बटर खाते हो, ऑल दिस थिंग्स. ऑयल सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें से हमको ऑयल मिलता है, लाइक यू कैन से ग्राउंडनट. नेक्स्ट जैगरी शुगर, जो आपको स्वीटनेस देता है, यानी कि गुड़, चीनी. रूट्स में बहुत सारी सब्जियां आ गई. ओके, जैसे कैरेट है, रेडिश है, इट इज़ रूट. मिल्क, दूध. फ्रूट्स, यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं. सो ऑल दिस आर बैलेंस्ड डाइट फूड. ओके, सो जस्ट टेल मी, डू यू ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड? क्या आप हर तरह के फूड खाते हो? इफ़ नो, देन वाई नॉट? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यू शुड ईट ऑल द टाइप ऑफ फूड. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यू शुड ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड. जैसे हमने ऑलरेडी बटाकिया भाई की स्टोरी पढ़ी थी, दैट ही यूज टू ईट ऑलवेज थिंग्स or food which was prepared by potato. So it was not good and finally उसको क्या हुआ, वो बीमार हो गया. Okay, so we should not do like this. Now see here, the food which gives us all nutrients is called balanced diet. To get balanced diet is the right of every child. हर एक बच्चे का हक है कि वो बैलेंस्ड डाइट उसको मिले. ओके, सो राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. नाउ वी हैव ऑलरेडी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको ऑब्जर्व किया है. कैन यू सी दिस वन? वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दिस. ओके, नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी हैव टू राइट डाउन सम पॉइंट्स. वी टेक डिफरेंट आइटम्स इन फूड. हम लोग अलग अलग आइटम्स खाते हैं. So you can also observe this thing and you can write down the following points. Now we'll move to next page. Okay, here again it is given right. Now in this you can see vegetables and fruits. These two headings are given. Now in both the boxes, in both the heading they have given one names. In vegetables, brinjal, and in fruits they have given apple. Okay, same way you can write different vegetables. I'll give you example, like potato is a vegetable. What else? Onion is a vegetable, cucumber is a vegetable. Same way, apple is a fruit, chiku is a fruit, mango is a fruit. So like this you can write down in your notebook. Next is ask and write. List out your daily food and from which cereals you are getting it. So name of food: chapati,
तो ये आपको किससे मिलता है? सो यू आर गेटिंग दिस थिंग फ्रॉम, यू कैन राइट wheat, you are getting this thing from wheat. Okay, same way rotlo, तो rotlo can be of bajri, it can be of maize, different jawar and all those things. So you can write down कि आपको वो किससे मिलता है. So same way here you can write down, same way this place you can write down the food item, and here you can write down कि वो किस चीज़ से बनता है. Okay, now we'll do next page. एक्टिविटी, यू विल हैव सीरियल्स एंड पल्सेस एट योर होम. आप सभी लोगों के घर में अलग अलग सीरियल्स होंगे, जैसे गेहूँ है, चावल है, मकई है, ऑल दिस, एंड पल्सेस यानी कि अलग अलग दालें हैं. तुअर हो गई, मसूर हो गई, मोगर हो गई, ऑल दिस आर पल्सेस. ओके, सो ब्रिंग 5 grains ऑफ ईच, इंट्रोड्यूस देम इन द क्लास, what have other friends brought, make a list. So what you can do here, you can write down the name of the cereals here, and you can write down the names of pulses here. Okay, now we'll move further. It is true, washing vegetables and cleaning grains before cooking would keep disease away. आप सब लोगों को ये पता होगा कि like whenever your parents they bring the vegetables or fruit to the home from the market, so they used to wash the vegetables before they cook, isn't it? क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्यों मम्मी सब्जियों को, फलों को धोते हैं कुक करने से पहले या खाने से पहले? बिकॉज इट मे हैव डिजीज़, उसके ऊपर हो सकता है मक्खी बैठी हो या वो ऐसे ही कहीं पे भी पड़ा हो, सो वो ख़राब होगा. सो इट कीप्स अवे फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़ेस, दैट्स वाई वी यूज़ टू वॉश देम. नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड बर्ड्स डू नॉट ईट अनलेस दे आर हंग्री. जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये लोग तब तक खाना नहीं खाते जब तक कि एकदम भूखे नहीं हो जाते. ओके, नेक्स्ट इज वॉश योर हैंड्स, फीट एंड फेस विथ सोप बिफोर ईटिंग. Now this is an important point they have given us, that wash your hands. अभी आप सबको पता है कि we are washing our hands, especially बच्चे पहले भी धोते थे, but nowadays because of this corona virus we are somewhat alert. हम लोग बहुत ज़्यादा alert हो गए हैं, and that's why we are always washing our hands, feet, face. हम लोग अपने पाँव धोते हैं, हम लोग अपना फेस धो रहे हैं साबुन से बार बार. ओके, सो वी शुड फॉलो दिस थिंग, इट कीप्स वन हेल्दी. तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करती हैं? हम लोगों को हेल्दी रखती हैं. ओके, नाउ डिस्कशन इज़ गिवन. हैव यू सीन फूड बीइंग कुक्ड? क्या आपने कभी भी किचन में जाके देखा है खाना किस तरीके से पकता है? तो सजेस्ट द डिफरेंट वेज टू कुक फूड. कौन से अलग अलग तरीके होते हैं खाने को पकाने के, खाना बनाने के. ओके, सो व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ईट रॉ फूड? क्या होगा अगर हम कच्चा खाना खाएंगे? विच थिंग्स कैन बी ईटन रॉ? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कच्ची खाते हैं यानी कि रॉ खाते हैं? विच थिंग्स कैन बी ईटन रोस्टेड? और कौन से खाने ऐसे होते हैं जिसको हम रोस्ट करके खाते हैं? ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डिस्कस विथ योर मदर स्पेशली. ओके, we will also discuss, but right now I'll tell you this thing. This I see here, this box is given here. In this box you can see the items are given: chapati, rotlo, puri pakoda, khichdi, bhakri. So one by one we'll see कि चपाती है, ये रोटलो है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? Here 3 columns are given. Here 3 columns are given: roast, बॉयल और फ्राई. रोस्ट मीन्स हम इसको सेकते हैं. ओके, जैसे हम लोग तवे पे सेकते हैं वो. बॉयल यानी हम उसको उबाल रहे हैं, एंड टू फ्राई यानी हम उसको तल रहे हैं. तो जो भी यहाँ पे आइटम दिया है उसको हम क्या कर रहे हैं? सो चपाती एंड रोटलो वी यूज टू रोस्ट, इजंट इट? नेक्स्ट पूरी पकोड़ा हम क्या करते हैं? दे हैव ऑलरेडी गिवन अस फ्राई, हम उसको फ्राई करते हैं तेल में, ऑयल में. खिचड़ी, सो खिचड़ी को हम बॉईल करते हैं, राइट, कुकर में.
bhakri, so bhakri is also again we are roasting. So like that only you have to write down here different food items and which process we are using. Okay, so you have to do this thing. Let us eat pure and hygienic food. Now here some important parts are given and we have to follow this thing, that let us eat pure and hygienic food. हमें खाना कैसा खाना चाहिए, एकदम प्योर, शुद्ध और हाइजेनिक, यानी गंदा नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई करके उसको खाना है. लाइक अगर मम्मी चावल बना रही है तो चावल पहले मम्मी साफ़ करती होगी, फिर उसको मम्मी वॉश करती होगी पानी से 2-3 बार, और उसके बाद उसे प्रेशर कुकर में बॉईल करने रखते होंगे. ओके, let us chew the food properly. This is also an important point that हमको जब भी हम खाना खाते हैं so we have to chew our food properly. उसे अच्छी तरीके से चबाना चाहिए. बच्चे क्या करते हैं, उसे फटाफट खाकर बस फिनिश करने की बात करते हैं. So we should not do that thing. Third, let us eat on time. We should have proper time. हमारा एक proper time होना ही चाहिए, that इस टाइम पे हमको खाना खा लेना है. Let us avoid overeating. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ओवर ईटिंग ना करें. ओवर ईटिंग मतलब आपका स्टमक, आपका पेट कितना खाना मांगता है, यू नो इट. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर आपके सामने आपका फेवरेट फूड आ गया, लाइक मंचूरियन है या पानी पूरी है या कुछ भी, वॉट एवर यू लाइक इट, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसे दबाते जाओ, बस खाते ही जाओ जब तक आपका पेट न दर्द हो. सो वी शुड नॉट डू दिस थिंग. ओके, next is we should drink enough water. So this is also an important point that we should drink enough water. हमें पूरे दिन अच्छी तरीके से पानी पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद नहीं, लेकिन हमें पूरे दिन अच्छी तरीके से पानी पीना चाहिए. Okay students, so this chapter it was about food, balanced diet, and I hope you understood the chapter. If there is any doubt you can ask me. Okay, thank you.